शरणं गच्छामि। Action is always better than inaction. There is a very interesting study that says if in any project or assignment you can have the first 18% right, you could be assured of 80% of the results. So it is important to focus on the first steps, do them diligently, and you will see the rest falls into place. A tiny shift in attitude and a tiny shift in your action can create very far-reaching results. Scientific research points out that a very tiny change in input can, under certain circumstances, create an overwhelmingly different output. This scientific research goes under the name of butterfly effect. It is real. You focus on learning, observing, and practicing the laws you have learnt, and the universal intelligence would very naturally take care of the results. The law, right action, is qualified by 4 characteristics. 1. It does not hurt another. 2. It is mutually nourishing. 3. It is consistent. And 4. It is enjoyable. If you want to create wealth, the means is as equally important as the end. Over the years, we have advised people to shift their professions if they were against the principle of universal good, even if they were personally profitable. Because what you sow, you certainly reap, but many times over. Sometimes the karma you earn by hurting others comes to you immediately. Sometimes it may even take decades. The second characteristic of right action is that it is mutually nourishing. It does good to you and does good to others involved as well. If each of you is only going to be concerned about your individual survival, the survival of the whole would be at stake. Self-centered activity, how much ever profitable, would ultimately cost you more than cooperation. The universe is so structured that you can only survive if you help others survive. Animals do it, plants do it, and some humans do it too in a very conscious manner, but many don't. The universe only knows the language of multiple returns. It gives you back manyfold what you offer it. Very often, the blessings go down to generations. The third characteristic of right action is consistency. Most people's inspiration only lasts for 3 days or 3 years. It is those very rare individuals who stay inspired for more than 30 years that go on to achieving amazing tasks of excellence. They are at it all the time. Many people work in spurts. 15 days of very hard effort and then a big break of 3 months before they begin again. This they do over years until they finally
give up branding themselves failures. Most people are often very close to their goals when they give up, fatigued. Remember, birth pangs are painful, but if you knew that you are bringing forth life, you go through it most willingly. The fourth and the ultimate characteristic, however, is to enjoy the effort. Enjoy not just the destination, but also the journey. Remember, action takes away fear. What is important is to perform. Act, do. निष्क्रियता से सक्रियता सदैव बेहतर है। एक दिलचस्प परीक्षण कहता है कि योजना में यदि पहले 17% आप सही हैं, तो बाकी का 50% परिणाम निश्चित है। कार्य की पहली अवस्था में एकाग्र होना अति आवश्यक है। आपकी मनोवृत्ति व कार्य में छोटा सा बदलाव बहुत ही दुखद परिणाम देगा। वैज्ञानिक संशोधन कहता है कि निवेश में थोड़ा सा बदलाव कुछ विशेष परिस्थितियों में आश्चर्यकारक उत्पादन होता है। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। ये सत्य है, आपने सीखे हुए नियमों का अवलोकन कर आचरण करने में एकाग्र हो जाइए। सही कार्य के नियम के 4 विशेषताएं हैं। वह दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता या दूसरों का नुकसान नहीं करता। वह पारंपरिक पोषण करता है। यह अनुकूल अभिवृद्धि है। वह आनंददायक है। यदि आपको संपत्ति निर्माण करनी है, तब उसके साधन भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। कई सालों से हम लोगों से कह रहे हैं कि यदि आपके व्यवसाय विश्व कल्याण के तत्व के विपरीत है, तो उसे छोड़ दीजिए। इससे कई गुना अधिक पाते हैं। दूसरों को दुख देने का फल या तो तुरंत मिलता है या कभी दशक लगते हैं। समय गति यदि विसमृत हो, तब बिंदुओं को जोड़ना कठिन होता है। क्या आपके व्यवसाय से दूसरों को लाभ होने के बजाय हानि पहुंच रही है? यदि है, तो आप अपने जीवन में कौन सा सुधार लाना चाहेंगे? सही कार्य की दूसरी विशेषता है, वो आपका तथा दूसरों का कल्याण करता है। यदि आप में से हर एक अपने जीवन रहने के बारे में सोचता है, तो इस संपूर्ण विश्व की उत्तरजीविका दांव पर लगी है। विश्व की रचना ऐसी है कि आप तभी जीवित रह सकते हैं यदि आप दूसरों की सहायता करेंगे। विश्व केवल कई गुना देने की भाषा जानता है। आप उसे जो समर्पण करते हैं, वो आपको वही कई गुना अधिक देता है। संपत्ति निर्माण में आपके कारण कितने लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा रहे हैं? सही कार्य की तीसरी विशेषता है सुसंगति। अधिकतर लोगों की प्रेरणा 3 दिन या 3 साल रहती है। बहुत कम लोग 30 साल तक प्रेरित रहकर आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। कई लोग रुककर कार्य करते हैं। 15 दिन की कठोर मेहनत, फिर 3 महीने का लंबा विश्राम, फिर मेहनत। अधिकतर लोग जब थककर छोड़ देते हैं, वास्तव में वे लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं। याद रखिए, जन्म की कसक या पीड़ा बहुत दर्दनाक होती है, किंतु आप एक जीवन उत्पन्न कर रहे हैं। आप अपने प्रयास में कितने कायम हैं? आपके निरंतर प्रयास की सफलता लिखिए। आपके परस्पर विरोधी व रुके हुए प्रयास के कारण
आपका कौन सा क्षेत्र कमजोर हुआ है, देखिए। चौथी अंतिम विशेषता है केवल लक्ष्य प्राप्ति का आनंद ही नहीं, बल्कि उस प्रयाण का भी आनंद उठाइए। याद रखिए, क्रिया भय को दूर करती है। सबसे महत्वपूर्ण है कार्य का अनुष्ठान। निर्णय लीजिए व संपन्न कीजिए। दो साल पहले मेरा अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन हुआ था, पर उसके भी 2 साल पहले मुझे बहुत दर्द होता था पेट में। सभी डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा कि अपेंडिसाइटिस का मतलब अपेंडिसाइटिस का सिम्टम्स है, पर उस अपेंडिक्स नहीं दिख रहा सोनोग्राफी में। उनको लगता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ या कुछ और दुख रहा है। तो फाइनली मुझे इतना जोर से दर्द होने लगा कि एडमिट करवाना ही पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा कि देखते हैं, ऑपरेशन करके देखते हैं क्या निकलता है। जनरली अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन 45 मिनट्स का होता है, तो मुझे 45 मिनट्स की एनेस्थीसिया दी थी और उसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। पर मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन 2 घंटे का निकला और मुझे बीच में ही होश आ गया था। और मुझे सब सुनाई दे रहा है कि वहां से कैंची लाओ, वहां से एसी कम करो, और मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि खून नीचे टपक रहा है। तभी मैंने भगवान से कहा कि भगवान, अब लगता है मैं मरने वाली हूँ। फिर मुझे भगवान दिखे। भगवान ने कहा कि ऐसे कैसे तू मरेगी, तू मेरी बेटी है। और फिर ऐसे मुझे अम्मा दिखी। वो अम्मा मेरे बाल सहला रही थी, मुझे एकदम सांत्वना दे रही थी कि कुछ नहीं होएगा तुझे, तू टेंशन मत ले। और फिर मेरे भगवान ने बोला कि तू बस मेरा मूल मंत्र बोल, फिर देख मैं क्या करता है। तो फिर मैंने मूल मंत्र बोला और मुझे अचानक से मतलब बेहोश हो गई वापस से मैं। मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन आराम से हुआ, अच्छे से हुआ। जब ऑपरेशन के बाद मालूम पड़ा कि मेरा अपेंडिक्स 11 सेंटीमीटर्स का था और वो पैंक्रियास के पीछे चला गया था, इसलिए सोनोग्राफी में दिखाई नहीं देता था। थैंक्स टू अम्मा भगवान, अगर और देर लगाती तो अपेंडिक्स फूटने वाला था और पूरे पॉइजन मेरे बॉडी में जाने वाला था। तो अम्मा भगवान की कृपा से मुझे अम्मा ने नई जान दी और जिंदा बचाया। इटली के मिलान शहर में हुए वन्य सम्मेलन में इस साल 1200 लोगों ने भाग लिया, जिसका संचालन श्री आनंद गिरि जी ने किया। चार दिनों के इस सम्मेलन में श्री आनंद गिरि जी ने ये बात विशेषता से बताई कि जीवन को संपूर्णता जीकर खुश रहना है, ताकि दूसरों को खुश रहने में हम सहायता कर सकें।
मैं जब महादीक्षा के लिए यहाँ आया तब उससे पहले मैं पूना में मेरे कंपनी में एज ए टीम मेंबर काम कर रहा था और मैं जस्ट हैंडल कर रहा था टीम को एज ए टीम लीड, बट मैं ऑफिशियली टीम लीड नहीं था। जब मैं यहाँ महादीक्षा में आया तीसरे दिन हमें सिखाया गया कि आपके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरे रिलेशनशिप मेरे घर वालों से उतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने अपने तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगी और मुझे रात में मेरे एक टीम मेंबर से मैसेज आया, SMS आया कि तुझे ऑफिशियली टीम लीड बना दिया गया है। और जब मैंने कंफर्मेशन के लिए मेरे और एक दोस्त को फ़ोन लगाया और मेरा जो सिंट्रानेट जो हमारे कंपनी का वेबसाइट है उस पर मेरा डेजिग्नेशन चेक किया तो मेरा बैंड और ग्रेड दोनों भी बढ़ गया और मेरा प्रमोशन हो गया। ओनली अम्मा भगवान कैन डू दिस। ये जो महादीक्षा है ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस है। प्रेजेंस के बारे में मैंने पहले दिन से सुनते थे, तो फिर आई डिडंट नो व्हाट इज प्रेजेंस। सो मेरे धारणा से, मेरे कंसेप्ट से मैंने जब प्रेजेंस को इन्वोक करने बोला है, मैंने इन्वाइटेड अम्मा भगवान into my heart and then I was carrying on. उसके बाद जब शवासन में हम लोग लेटी थे उस टाइम अचानक क्या हुआ, एकदम जैसे मैं पत्थर का माफिक हो गई, एकदम मूव करने नहीं सकती थी, हिला नहीं, एकदम जैसे हमने एक स्टैचू बन गई थी। तो कोई बात नहीं, मेरी वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी लगी थी, मगर ये एक्सपीरियंस को बाद मैंने महसूस करने लगा कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आई है, कि मैं ऐसे टॉकेटिव थी, बहुत ही टॉकेटिव। जैसे आप लोग जानते हैं कि मन सभी टाइम बात करते हैं, पर ये एक्सपीरियंस के बाद मैंने महसूस किया कि मैं अंदर से एकदम चुप हो गया। मेरे अंदर तो बात नहीं करते हैं, कि मैं जैसे हूँ ऐसे ही हूँ। आई एम ऑलवेज इन प्रेजेंट। जैसे कि मेरे जो मैं पास्ट वो मैंने भूल गया और फ्यूचर में भी क्या करना है वो मेरे कुछ अंदर में नहीं आती थी। आई वॉज ऑलवेज इन प्रेजेंट एंड द रनिंग कमेंट्री जो मन में चलते हैं वो बिल्कुल बंद हो गई। और जो कुछ मैं देखती थी आई वॉज एंजॉइंग, जो कुछ मैं करती थी आई वॉज एंजॉइंग। इट वॉज एन यूनिक एक्सपीरियंस।